Hello everyone. So back to aldehydes and ketones. So in the previous lecture what we had seen, those tests which are applied to only aldehydes and only to ketones. That means to distinguish them we can use this test, these reactions. So lab test for aldehydes only. We had seen Ship's base or reagent test. Then second was Tollens test. Third is Felling's test. This is applicable only for aldehydes, not shown by ketones. For ketone, we have taken only one test, and that is sodium nitroprusside test. So by this we can distinguish aldehydes and ketones. Now we will take those chemical reactions which are shown by both aldehydes and ketones. Now chemical reaction shown by aldehydes and ketones, we will first once again see the structure of aldehydes and ketones. So this is aldehyde, and similarly H के जगह पे R लगा देंगे, R dash, तो ये कीटोन हो गया. Now this reaction, this bond which is present in both aldehyde and ketones, we call it as carbonyl bond. C double bond O carbonyl group, this is carbonyl carbon, this is a polar molecule, polar bond, and carbon carries fractional positive charge and oxygen carries negative charge, both in case of aldehydes and ketones. So now we will see the first type of reaction, and that is addition reaction. Addition reaction. अब addition भी कौन सा होने वाला है यहाँ पर? न्यूक्लियोफिलिक addition. न्यूक्लियोफिलिक. See something very important. अगर ये फंडा अपने को याद रह गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अब न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज लविंग है. अल्डिहाइड कीटोन में ये कार्बोनिल कार्बन है ना, कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन. सो दिस कार्बोनिल कार्बन which carries positive charge can attract nucleophile. तो जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक कहां करने वाला है? कार्बोनिल कार्बन पे. And therefore we say this addition reaction is a nucleophilic kind of addition reaction. अब जैसे इसमें एक फर्स्ट एडिशन रिएक्शन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. Addition of hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. Addition of hydrogen cyanide. HCl. Addition of hydrogen cyanide. Now, hydrogen cyanide, when reacted with aldehyde, let us take one example of aldehyde as a standard example. We take acetaldehyde as a standard example, react with hydrogen cyanide, and similarly we will take ketone, standard example acetone. Wherever required we will take some specific example, but more or less we will use these two examples. Acetaldehyde, CH3CHO, and here is acetone. Both will be reacted with hydrogen cyanide. Now look for this hydrogen cyanide, the nucleophilic part of it. What is the nucleophilic part of it? ये cyanide होगा क्या इसका nucleophilic part? होगा ना nucleophilic? This will be the negative part और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव पार्ट.
तो ये नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा बेटा, ये बतला दो अभी मुझे, कहां जाएगा, ये जाएगा क्या कार्बन के तरफ नेगेटिव, और पॉजिटिव किसके तरफ आने वाला है, पॉजिटिव किस पे अटैक करने वाला है, ऑक्सीजन पे। सही है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप, ये साइनाइड जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। तो इनका बॉन्ड बन जाएगा और ये एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट भी अभी अपने को दिखेगा नहीं यहां पर। तो ये CH3CH, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन, और कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे क्या अटैक करने वाला है, साइनाइड। तो देखो कितना सिंपल एडिशन प्रोडक्ट आ गया, H एडेड टू ऑक्सीजन एंड साइनाइड कम्स टू कार्बन। ऐसा ही कीटोन में भी हो जाएगा, एसीटोन में CH3CCH3, here comes OH and this is Cl। तो ये एसिटल्डिहाइड का एडिशन प्रोडक्ट, ये एसीटोन का एडिशन प्रोडक्ट, वी कॉल देम एज साइनोहाइड्रीन। इसका नोमेनक्लेचर बनेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और ये बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। सही है रिएक्शन, तो एकदम इजी। Addition of hydrogen cyanide will produce cyanohydrin, and how the product we are going to make, the negative part will be added to carbon और positive part जो रहेगा वो ऑक्सीजन पे कंबाइन होगा। तो एसिटल्डिहाइड एसीटोन दो स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लिए, और आपको एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट आ गया। तो ये होगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन देखो, addition of sodium hydrogen sulfide, sodium hydrogen sulfide। जरा सल्फाइड अगर है तो फॉर्मूला बोलो मुझे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट ढूंढना है अपने को, और फिर से वही दो एग्जांपल, एसिटल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, और एसीटोन CH3CCH3 हियर एंड डबल बॉन्ड O। तो A और B अपने दो रिएक्टेंट, या 1 and 2 जो भी कंसिडर करें आप इसको, A और B कंसिडर करें उसको, A और B। A क्या रहेगा, एसिटल्डिहाइड, और B रहेगा और सेकेंड रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम। तो यहां आ गया एसिटल्डिहाइड, बार बार लिखते नहीं यहां पर, एसिटल्डिहाइड, ये एसीटोन दिख रहा है आप सभी को। हाँ, तो क्या एडिशन करना है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए यहां क्या होगा, फिर से इसमें से सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, और सल्फाइड क्या है SO3 है। तो पॉजिटिव पार्ट क्या मिला, पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम और हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट है SO3 2-। सही है, ये सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव +2 हो गया और SO3 2- हो गया। तो अब आप यहां पर देख लो कि एडिशन क्या होगा। तो मैं लिखता हूं और आप जरा एडिशन को सोचिए। तो CH3CH ये O रहेगा और एक वैलेंसी यहां पर आएगी। ये ऑक्सीजन के पास एक ही वैलेंसी है, तो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक ही आएगा इसके पास। ट्रांसपोर्ट नंबर हाइड्रोजन का
यहां पर कम होने से हाइड्रोजन इजीली ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। अब बचा क्या यहाँ पर SO3Na, और कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? नेगेटिव चार्ज के साथ कि सोडियम के साथ? नेगेटिव के साथ। ये करेक्ट है। तो क्या मिलेगा? ये SO3Na। जब आप लिखेंगे तो बॉन्डिंग सल्फर के साथ दिखाना है। वैलेंसी सल्फर की फ्री है, सोडियम की फ्री नहीं है ना। 1 वैलेंसी है, वो तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो क्या मिला आपको? ये एडिशन प्रोडक्ट आ गया। कितना सिंपल रिएक्शन है। अब यहां पर भी अप्लाई करो तो वैसा ही लॉजिक, एकदम इजी। A + B = C, सिंपल एडिशन रिएक्शन। तो फिर से यहां CH3 लिख दिया हमने, ये कार्बन, ये CH3 आ गया। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया। अब इसके साथ बॉन्ड क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे कौन सा ग्रुप बॉन्ड बनाएगा? SO3Na। तो एसीटल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एसीटोन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और इसका नाम पूरा की पूरा वैसा ही लिखना है, एसीटल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वैसा ही पूरा नाम। एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसा ही कीटोन के साथ यानी एसीटोन के साथ आ जाएगा, एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिंपल है एडिशन रिएक्शन। हमने फोकस काय पे किया था? ये कार्बन पे फोकस किए थे हमने, है ना। कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर कर रहा है? कार्बन पे कर रहा है। तो ये देखिए कार्बन पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल साइनाइड ने, न्यूक्लियोफाइल सोडियम सल्फाइड ने, और आपको एडिशन प्रोडक्ट आ गया। तो ये सेकेंड एडिशन रिएक्शन हो गई हमारी। अब थर्ड एडिशन रिएक्शन देखते हैं इसमें, है ना। थर्ड एडिशन रिएक्शन, थर्ड एडिशन रिएक्शन में क्या आएगा ये देखते हैं। नाउ थर्ड एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल। This is something important, addition of alcohols to aldehyde and ketones. अब इसमें A पार्ट लेते हैं, addition of alcohol to an acetaldehyde molecule। तो ये acetaldehyde बना, इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनसिमेट्रिकल अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एसीटल्डिहाइड है, और एसीटल्डिहाइड में आपने अल्कोहल ऐड किया। अब फिर से इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट बना लीजिए आप। तो ये इथॉक्सी ग्रुप जो है, ये इथॉक्सी ग्रुप, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, और हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। अब आपकी रिएक्शन सिंपल हो गई। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और एक बार अपने समझ में आ गया तो फिर रिएक्शन लिखना बहुत इजी है। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं कि फंडा समझ लेंगे हम लोग, तो इतना सिंपल हो गई अब ये रिएक्शन। देखिए अब क्या करना है आपको, ये CH3, ये CH, यहां पर पॉजिटिव पार्ट OH आ गया, ये नेगेटिव पार्ट आ गया, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो इथॉक्सी ग्रुप आ गया यहां पर। तो ये क्या कंपाउंड बन गया? अब आपको यहां पर CH3 CHOH OC2H5 है ना। इथॉक्सी इथेनॉल है क्या? ये इथॉक्सी इथेनॉल है ना, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप भी है और इथॉक्सी भी है। इसे हम कहते हैं हेमी एसीटाल। हेमी एसीटाल इसका कॉमन नेम है, एंड दिस इज अनस्टेबल प्रोडक्ट। होता क्या है कि इसमें एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड हो सकता है अभी अंडर सिमिलर कंडीशन, है ना, ड्राई HCl गैस। और इक्विलिब्रियम साइन फिर से रहेगा यहां पर, ड्राई HCl गैस C2H5। अब कहां होगा एडिशन? अब सोचिए यहां पर क्या होगा,
कि यहाँ पर फिर से ये नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, OC2H5, और ये यहां से एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सेकेंड मॉलिक्यूल जो हो रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन था, अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन पार्ट आ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फर्स्ट मॉलिक्यूल हेमीएसिटाल मिला, अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब क्या मिल रहा है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये एल्कोक्सी ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, ये किसके जगह आ जाएगा, OH दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास। तो अब आपके पास में क्या बच गया, ये CH3 CH, डाउन वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड है, OC2H5 OC2H5, और साइड वाली वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाई होने वाली है, अब सब्स्टिट्यूशन हो गया OC2H5, करेक्ट है। और अब साइड प्रोडक्ट आप लिख सकते हो प्लस H2O। सो दिस इज व्हाट द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एन एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये दोनों ग्रुप कौन से, इथॉक्सी, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर लिखना है तो हम नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, 1,1 डाइइथॉक्सी, 1,1 डाइइथॉक्सी इथेन, 2 ही कार्बन है तो इथेन आ गया, 1,1 डाइइथॉक्सी इथेन। तो ये आपको मिला प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं हम एसीटाल। तो याद क्या रखना है, व्हेन एसिटल्डिहाइड and alcohol are added together, it finally gives acetal, and acetal is nothing but a dialkoxy alkane। तो ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी। कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं। लेट अस टेक कीटोन CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। अब चलिए इसमें फिर से अल्कोहल ऐड कर दें। कंडीशन रिमेन्स द सेम, ड्राई HCl, इक्विलिब्रियम साइन, ड्राई HCl गैस। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन एडिशन है, विल बी हियर, OC2H5 कहां जाएगा, कार्बन पे। इजी हो गया एडिशन हमारे लिए। अब क्या बना यहां, ये CH3, देन CH3, OH, और डाउन वैलेंसी OC2H5। तो फिर से ये हेमीएसिटाल मिला। हेमी मीन्स हाफ होता है ना, हेमीस्फीयर वगैरह बोलते हैं हम लोग। तो ये हेमीएसिटाल मीन्स हाफ ऑफ द ग्रुप। इसमें 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल कैन बी एडेड, 1 मोर मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन अभी मैंने कहा था ऊपर में, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहां सब्स्टिट्यूशन होगा सेकेंड मॉलिक्यूल का, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल, इथॉक्सी ग्रुप, किसके जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल के जगह। तो अब प्रोडक्ट क्या मिला आपको, यहां पर थोड़ा सा क्लमजी होगा, देखते हैं लिख के, नहीं तो फिर नीचे लिखेंगे CH3 CH3 OC2H5, और यहां भी OC2H5। साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, H2O। आ रही है रिएक्शन। अब चलो ये बन गया एसीटाल आपके लिए। एसीटाल नहीं, अब इसे हेमीकीटाल बोलेंगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कीटाल बोलेंगे, है ना। कीटाल, एसीटाल एसिटल्डिहाइड ग्रुप के लिए, और ये कीटाल रहेगा कीटोन के लिए। इसका नोमेनक्लेचर करें। नोमेनक्लेचर के लिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। आ गया नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे अब आप, 2,2 डाइइथॉक्सी, 2,2 डाइइथॉक्सी प्रोपेन, 2,2 डाइइथॉक्सी प्रोपेन।
उसे हम क्या बोलेंगे, कीटाल प्लस H2O। तो आपने यहां पर कीटोन लिया, दैट इज एसीटोन, और उसका हेमीकीटाल बनाया और बाद में कीटाल बना लिया। तो याद क्या रखना है हमको, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स एसीटाल और कीटाल रिस्पेक्टिवली। इसमें एक स्पेशल रिएक्शन याद रखना है ना, स्पेशल रिएक्शन जरा हैशटैग करके, कीटोन के साथ करने का अपने को रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहां क्या रिएक्ट करते हैं हम, ये लेते हैं एसीटोन लिया और इसके साथ रिएक्ट करते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकॉल और 1,2-डायोल। देखिए ये 1,2-डायोल कैसे रिएक्ट होगा इसके साथ, ये एक साइक्लिक कीटाल बना देगा यहां पर। 1,2-डायोल विल मेक अ साइक्लिक कीटाल हियर। अब यहां से आप ये 2 हाइड्रोजन निकाल दिया ऑक्सीजन से, तो क्या मिल गया प्रोडक्ट। अब आपको क्या प्रोडक्ट, ये सिंपल देखिए, अब आप OC2CH2 OCH2, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया आपने, -H2O लिख दिया हमने। अब साइक्लिक कीटाल मिलेगा, ये CH3 कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, एंड नाउ बाइवेलेंट ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड बना लिया इससे, करेक्ट है। एंड दिस 2 कार्बन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये देखिए यहां पर बॉन्ड बना है, तो ये बन गया पूरा साइक्लिक ग्रुप। वी कॉल दिस एज साइक्लिक कीटाल। सो स्पेशल रिएक्शन ऑफ एसीटोन with इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसे हम क्या बोलते हैं, 1,2-इथेन डायोल, 1,2-इथेन डायोल। तो ये होगी थर्ड एडिशन रिएक्शन, अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन एडिशन विथ अल्कोहल प्रोड्यूसेस एसीटाल और कीटाल। और स्पेशल रिएक्शन काय के लिए रिएक्शन स्पेशल है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, साइक्लिक कीटाल बन रहा है, कीटोन की स्पेशल रिएक्शन 1,2-इथेन डायोल। नाउ विल मूव टू द फोर्थ एडिशन रिएक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक में, है ना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है, RMgX। अब ये रिएक्शन अल्कोहल वाले टॉपिक में देखना, मैं आपको जनरल हिंट दे देता हूं यहां पर कैसे होगी रिएक्शन, है ना। तो इसमें एडिशन ऑफ RMgX को ऐड करना है अल्डिहाइड और कीटोन में। तो पहला एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO। टू दैट इफ वी ऐड RMgX, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पर, RCH2OH, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन प्रीवियस चैप्टर में है, एक बार चेक करेंगे आप। अब दूसरी रिएक्शन में RCHO, वेयर R इज एन अल्काइल ग्रुप। अब ये जो अल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये कोई भी अल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड हो सकता है, प्रोपियोनल्डिहाइड हो सकता है, ब्यूट्राल्डिहाइड हो सकता है, और इसके साथ ये RMgX का एडिशन कर दिया हमने, है ना। तो ये हाइयर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। इफ रिएक्टेड इसको R डैश कर देते हैं, और ये RCHO R-MgX विल गिव RC R डैश H एंड OH। ये क्या मिला आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कंडीशन तो हमें पता है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। Similarly, when we take ketone, RCH
C R dash double bond O plus R double dash MgX in presence of dry ether. What we get? Tertiary alcohol. R C R dash, here comes R double dash and OH, we get tertiary alcohol. So addition of Grignard reagent to aldehyde produces alcohol. एक general sentence तो ऐसा ही बनेगा कि when aldehyde and ketone are taken, to that if we add Grignard reagent we get alcohol. उसका further अब क्या रहेगा? If we take formaldehyde and Grignard reagent we get primary alcohol. If we take higher aldehyde plus Grignard reagent we get secondary alcohol. If we take acetone, that is ketone, यहाँ कीटोन आपने लिया तो आपको मिल गया टर्शियरी अल्कोहल. सही है. ये रिएक्शन अल्डिहाइड वाले चैप्टर में है, पूरा डिटेल में लिखाया था, आप देखेंगे उसको. एंड दीज आर द 4 एडिशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कल एक और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के लिए. ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.